Hello guys, learning of audit and retaining audit is very much important. आपने इंश्योरेंस कंपनी के सारे कंसेप्ट हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लिए होंगे, है ना? देख रहे हैं? सो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप इस YouTube चैनल के प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लीजिए. प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड आउट द कोर कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑडिट. आज क्योंकि हमें स्टार्ट करना है Q&A, आपके कंसेप्ट मजबूत होना जरूरी है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कर लिए. सो आज जो Q&A करने वाले हैं गाइस, दैट इज बेस्ड ऑन इंश्योरेंस. बट या बिफोर वी स्टार्ट विथ द करंट टॉपिक, लेट मी मेक यू ऑल अवेयर अबाउट वन वेरी क्विक अनाउंसमेंट that we have launched the scholarship program for CA Intermediate and all the articleship going students. 25th of June को we are going to plan out one super important very beautiful test series जिसके winners को up to maximum 5000 win करने के chances है. हाँ, apart from that we are also going to give the free scholarships over the plus as well as iconic batches. सेकेंडली, कई बार बच्चे हम लोगों को कहते हैं कि सीए फाइनल स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए क्या है. सो हियर आई गो. इन स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आए हैं डेली स्कॉलरशिप्स एंड टेस्ट सीरीज. Guys, you go to Unacademy applications and there you will find the daily scholarship test series. You will be able to evaluate yourself as well as you will be able to win beautiful prizes. And guys, CA फाइनल नवंबर 22 एंड May 23 के लिए हम लोगों ने प्लस क्लासेस लॉन्च कर दिए. These plus classes are going to be very helpful for your preparations of full group 1, group 2 और both. Iconic subscriptions पे भी आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, लाइव मेंटोरशिप मिलने वाली है, फिजिकल कॉपीज ऑफ बुक्स मिलने वाली है, इवेल्युएटेड कॉपीज ऑफ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है एंड मच मोर. सो ऑल दीज एक्सपीरियंस, व्हाट मोर यू नीड फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. This is the best flagship program we have launched for you all. Do evaluate this plan, guys. And also on utilizations of the code KSNB Live or audit SAR, you're going to get maximum possible discount on this particular channel. So these are the group 2 prizes and these are the group 1 prizes. अगर आपकी सिस्टमैटिक स्टडीज अभी भी शुरू नहीं हुई है, काफी सारे जन कहते हैं FR और SFM तो मैम चल रहा है बट ऑडिट लॉ की तैयारी नहीं हुई है. Guys, don't take the subject lightly. We have to pass all the subjects in order to clear a group. ठीक है? So let's get now started with the preparations of Q&A of insurance audit. चल पढ़ना शुरू करते हैं. चलिए अब शुरू करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. एज वी ऑल हैव स्टडीड दिस, इंश्योरेंस वाले चैप्टर में बच्चों दो इंश्योरेंस के क्वेश्चन है. एक है लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन और एक है जनरल इंश्योरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन. लाइफ एंड जनरल. ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन. TNT Limited is engaged in the life insurance business. The company's operation have been considerable in the northern India and its head office is also based New Delhi. Okay. TNT Limited, while preparing the financial statements, have classified the administrative expenses under 14 heads. Very good. As mentioned in the Schedule 3, forming part of the financial statements given under Schedule A to IRDA Regulations 2002. Now the question begins. What is your responsibility as an auditor, particularly in relation to administrative or the expenses of the management? So frankly speaking, being an auditor, we have to check appropriate allocations. We have to check क्या equitable grounds, justifiable grounds है for the apportionments of the expenses or not. So जो 14 heads के अंदर expenses classify हो रहे हैं, divide हो रहे हैं, whether that is appropriate or not. बस इतना ही तो आंसर लिखना है. एंड हाँ, मटेरियल एक्सपेंसेस है जैसे कि 5 लाख या 1% ऑफ द प्रीमियम, जो मटेरियल एक्सपेंसेस है वेदर दे आर शोन सेपरेटली. ठीक है, सो ऑल द मेजर एक्सपेंसेस 5 lakhs और इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द प्रीमियम विच एवर इज हायर आर शोन सेपरेटली. You need to check the apportionments, whether they are based on a reasonable and the equitable ground, whether the accounting policies actually clearly indicates the criteria for apportionments of the expenses. ठीक है, and any expenses which are covered, which are actually not covered under these 14 heads should be mentioned as other expenses under the head others. Okay, very recently asked January 21 question. Next, Cab Insurance Limited was incorporated in 1st July 2020.
Company is mainly in the areas of health insurance and planning to expand in other fields of general insurance. You have been appointed as Chief Financial Officer of the company. The company has made investments as per the guidelines in the real estate investments. Now the real question starts. बोलता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन द इक्विटी, ऑल्सो इन इक्विटी, सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स वगैरह वगैरह. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि आप ज़रा बताइए तो सही कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन द रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, उसको वैल्यू कैसे किया जाए. सो अगर हमने ये से फॉर एग्जांपल हम भूल भी गए, मुझे नहीं याद आ रहा है ये क्वेश्चन कि इंश्योरेंस में कैसे हो. नॉर्मली स्पीकिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, कैसे वैल्यू होता है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वैल्यू करेंगे. डेरिवेटिव्स है तो कैसे वैल्यू होगा? ट्रेडिंग पर्पस है तो फेयर वैल्यू करेंगे. बस इतना आंसर्स भी आप अकाउंटिंग पर्पस लिख करके आओगे ना, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, तो लुक एट द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अगर आपको एक्यूरेट आंसर आ ही रहा है तो वेरी गुड, राइट दैट. इफ एट ऑल यू आर नॉट एबल टू रिकॉल कि यार इन्वेस्टमेंट कहाँ था इंश्योरेंस कंपनी में, हाउ डू दे वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स, ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा जनरलाइज करके दिमाग लगाएंगे कि हाउ इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली वेरीफाइड या फिर यूजुअली वैल्यूड फॉर अदर बिजनेसेस, द सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर इंश्योरेंस. ठीक है, सो या फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर रीवैल्यूएशन लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस है, उसको भी माइनस करेंगे. देन हम लोग बोलेंगे इंश्योरर शैल असेस एट द बैलेंस शीट डेट एनी काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो इमीडिएटली पीएनएल में, एक्सपेंसेस रेवेन्यू पीएनएल में इमीडिएटली चार्ज कर देंगे. सो दिस इज हाउ यू वैल्यू योर इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन है. ये मेरे हिसाब से हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. क्या है समझो. एज ऑन 31st of March 20, while auditing Safe Insurance Limited, you observe that the policy has been issued on 25th of March 20 for fire insurance, for fire risk, favoring one of the leading corporate houses. मतलब मैंने, आई एम इंश्योरेंस कंपनी, मैंने कोई लीडिंग कॉर्पोरेट हाउसेस को इंश्योरेंस पॉलिसी दे करके रखा है 25 मार्च को. किस चीज़ के लिए? फायर सेफ्टी के लिए. बट हुआ क्या, मुझे एक्चुअली इनका प्रीमियम मिला नहीं था. मैंने प्रीमियम रिसीवेबल करके ये पॉलिसी इशू कर दी. बिकॉज ये बहुत बड़ा कस्टमर है, बड़ा क्लाइंट है, मैं ज़्यादा पैसा नहीं करती, मुझे पता है कि यार ये पैसा आने ही वाला है. और हुआ क्या, 5th of April को देयर वॉज अनफॉर्चुनेट फायर एक्सीडेंट हैपनिंग इन द प्रीमाइसेस ऑफ दैट बिग कॉर्पोरेट हाउस. अब उन्होंने क्लेम लॉन्च किया. अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे दैट क्लेम? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि नो प्रीमियम नो इंश्योरेंस पॉलिसी. अगर हमको पॉलिसी का प्रीमियम नहीं मिला है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रिस्क. नो प्रीमियम नो रिस्क. इन दिस पर्टिकुलर केस आप प्रीमियम रिसीवेबल के नाम पे कोई क्लेम लॉन्च नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज 64VB. No risk can be assumed unless the premium is received. In the given case, according to section 64VB, no insurer shall assume the risk in India. जो भी मतलब I cannot give any claim, I cannot pay out any claim in India or outside India जिसका अमाउंट अक्रूव्ड है बट मिला नहीं है. अगर प्रीमियम नहीं मिला है, कोई इंश्योरेंस का हिस्सा मुझे नहीं मिला है, मैं रिस्क क्लेम लॉन्च नहीं करूँगी. सो द कंपनी इज very well not liable or there is no requirement to make a provision for such claim. यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, एग्जैक्टली सेम. स्टडी मैट में भी दिया था, आरटीपी May 21 में आया हुआ है. बिकॉज ये सेम है, ये आज का आपका होमवर्क. यूजुअल प्रैक्टिस, बिग क्लेम, प्रीमियम नहीं मिला, एक्चुअल रिसीट ऑफ द प्रीमियम, सेम क्वेश्चन. ओके, इसके बाद आता है December 21 का दिया हुआ क्वेश्चन. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन. CAM has been appointed as an auditor of Life Secure Insurance Limited. He observed that few insurance policy have been sold by the company in last months of the financial year ending 31st of March 21. While recognizing the income in the income statements of the company, it is the responsibility of CAM to make the assessment of the reasonability of the risk pattern managed by the management. Okay. सब प्रवचन है. Also, it is to be ensured that by him that Life Secure Insurance Limited should not issue any policy if risk is not established before the closure of the financial year. Main question यहाँ पे आता है, ये सब प्रवचन
क्या क्वेश्चन कह रहा है, इंडिकेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन द कंपनी डिड नॉट इशू पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आप खुद ही दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि कौन से सर्कमस्टांसेस में हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेंगे। पहली बात, पैसा नहीं मिला, प्रीमियम प्रीमियम नहीं मिला है, पार्ट प्रीमियम मिला है, चेक डिसऑनर हो गया है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर मिसिंग है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो मिसिंग है, जो डेटा हमें मिला है वो थोड़ा सा फॉर्ज लग रहा है। तो इन दिस फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट इशू पॉलिसी डॉक्यूमेंट। यस और नो? सो प्रीमियम इज नॉट कलेक्टेड, रेलिवेंट चेक हैज़ बिन डिसऑनर्ड, प्रीमियम इमीडिएटली नॉट कलेक्टेड, बैंक गारंटी जो इन्होंने दिया था वो सारा नहीं हुआ है, प्रीमियम हैड नॉट बीन कलेक्टेड ड्यू टू रिस्क। बेसिकली हम लोगों को जो रिस्क मतलब रिस्क कवर मिल रहा है उसका प्रीमियम पार्ट प्रीमियम मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखा एंड आपको प्रीमियम भरना था 15,000 रुपये, बट जब भी एजेंट की बात चल रही थी तभी आपसे बात चल रही थी बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉर्म्स रूल्स एंड एक्चुअल पॉलिसी कि भाई साहब आपका तो 12,000 में चल जाएगा, ये पॉलिसी मिल जाएगी। तो आपने क्या किया, मुझे 12,000 रुपये दे दिए, बट जिस टाइप का रिस्क कवर चाहिए आपको उसके लिए 15,000 का प्रीमियम भरना था। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रीमियम, सो उसके कारण भी ये देखो उसके कारण भी हम लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं इशू करेंगे। इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रीमियम हैव नॉट बीन कलेक्टेड इन टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ पॉलिसीज, जैसे कि मरीन कम इरेक्शन पॉलिसीज। तो ये सारा चीज़ हमको नहीं मिला। मेजरली क्या होता है, प्रीमियम नहीं मिला, हम लोग रिस्क रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेंगे। प्रीमियम कलेक्टेड बट पॉलिसी नॉट इशूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये वाला पॉइंट क्या है समझो जरा। बोलते हैं प्रीमियम कलेक्ट तो हुआ बट काफ़ी टाइम से हम लोगों ने पॉलिसी इशू ही नहीं की। अगर काफ़ी टाइम से हम लोगों ने पॉलिसी इशू ही नहीं की है सो बॉस कुछ तो गड़बड़ है डॉक्यूमेंटेशन में, सिग्नेचर में, वेरिफिकेशन में। देयर इज समथिंग विच इज मेकिंग द इंश्योरेंस कंपनी टू पुट दिस इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन होल्ड इन अबेयंस। Question number 5, next one. You are the auditor of Good Luck Insurance Company. You want to ensure that there exists a good system of that effectively serves the requirement of true and fair accounting claims. Suggest how this can be done. बोलता है कि आपको ये जानना है कि जो क्लेम्स है, जो प्रोविजंस है वो सही है या नहीं है। सो हाउ विल यू डू दैट? फ्रेंकली स्पीकिंग हम लोगों ने जो एरियाज पढ़े थे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के केस में, तो हम लोग क्लेम और प्रोविजन को कैसे वाउच और वेरीफाई करेंगे उसका आंसर लिखना है। सो ऑडिटर को चेक करना है कि डिवीजन, ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग ईयर एंड प्रोविजन कितने का किया है, कोई अनसेटल्ड क्लेम है क्या, क्लेम कब लॉन्च हुआ है, इनिशियल डिफॉल्ट। तो ये सारा चीज़ क्या है पता है, दीज ऑल स्टफ्स आर विथ रिगार्ड्स टू, यहाँ पे ज़रा जा करके देखिए क्लेम्स को कैसे वेरीफाई करेंगे, वो वाला आंसर है। दिस इज प्रीमियम claim provision. So this is the answer. Yeah. 64 VB। मैम तो इतना बड़ा आंसर लिखना है क्या हम लोगों को? हर बार ऐसा 20-20, 25-25 पॉइंट्स लिखने? आंसर इज नहीं स्टूडेंट्स। व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स यू कैन वेरी वेल राइट द स्ट्रॉन्ग 5 to 6 पॉइंट्स एंड दैट इज इट। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो सेम। फायर वाला है, नो इंश्योरेंस नो नो प्रीमियम नो रिस्क, नो प्रीमियम नो रिस्क। नेक्स्ट, you have been appointed as an auditor of ABC Insurance Company Limited. Found that Messrs PQR Limited got their plants and machinery insured on 1st October 2018, but the amount of premium has been paid on 15th of October, 1st October, 15th of October. मीनवाइल 10 अक्टूबर को फायर हो गया, पॉलिसी 1 को दे दी, प्रीमियम 15 को मिला और बीच में ओ माय गॉड 10 तारीख को फायर हो गया। क्या ये फायर का क्लेम हम एंटरटेन करेंगे? नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हाउ विल यू वेरीफाई? सेम पॉइंट है, एंश्योर द स्टेप्स टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर टू वेरीफाई द क्लेम प्रोविजन फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कैसे करेंगे वो चीज़? सेम टू सेम क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि जिस हिसाब से आरटीपी में आ गया ना, पहले भी मैंने आरटीपी का क्वेश्चन बताया, अभी भी आरटीपी में आया है, very high chances that they can ask you a question with regards to the claim provision. What you need to verify is whether the provision is made for all the claims. IBR, IBN, ER वाला provisions आपको देखना है। incurred but not registered,
बट नॉट इनफ रिकॉर्डेड, ठीक है। सो ये सारा चीज़ का लीगल लायबिलिटी का प्रोविजन, आर्बिट्रेशन वैल्यू, क्लेम का स्टेटस क्या है, लीगल एडवाइजेस देना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गारंटी, सैल्वेजेस, ये सारा चीज़ वेरीफाई करना। ऑन अकाउंट पेमेंट किया है क्या। सो important 6 to 7 points and you are done. Okay, next, what are the steps to be taken while verifying the premium of general insurance policy and life insurance policy। ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है। प्रीमियम को चेक करने के लिए, प्रीमियम इनकम को चेक करने के लिए, फॉर जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, आप क्या चेक करोगे। ये है जनरल इंश्योरेंस वाले पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस वाले पॉइंट आगे दिए हुए हैं आपको ऑडिट सार में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल इंश्योरेंस, हम लोगों को ये वेरीफाई करना है कि प्रीमियम विच इज़ कलेक्टेड इज एज पर आरबीआई रेट, जीएसटी क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ओवर द रिकॉग्निशन, रिसिप्ट ऑफ द मनी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे किया जा रहा है, पीरियोडिक रिसिप्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैंसिलेशन, refunds, understand the overall system and the architect of the data flow कि कौन कैसे डेटा एंट्री पास कर रहा है, how the reports are generated, bank guarantees, so GST whether that is received from the policy holder। तो ये आपको देखना है, चेक करना है फॉर द प्रीमियम फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दैट इज अ बड़ा वाला पॉइंट, ठीक है। प्रीमियम में 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे। या हियर कलेक्शन ऑफ द प्रीमियम, कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम, रिकॉग्निशन ऑफ द इनकम, एडवांस प्रीमियम मिला है तो क्या करेंगे, आईआरडीए को और मैनेजमेंट को फिगर्स शो करना एंड अदर्स। सो लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम चेक करने में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जनरल इंश्योरेंस में आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन के पॉइंट्स लिखने हैं। आईटी सिस्टम, प्रीमियम हैज़ बीन कलेक्टेड और नॉट, डिसऑनर तो नहीं हुआ है, प्रीमियम रिस्क, क्लेम्स क्या लॉन्च है, को इंश्योरेंस का हिस्सा मिला है कि नहीं, जीएसटी, बैंक गारंटीज, पॉलिसी होल्डर को जो पैसा मिला है क्विकली पॉसिबल है तो उसका डेटा वगैरह स्टोर करके रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव बीन अपॉइंटेड टू कैरी आउट द ऑडिट ऑफ ब्लू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 1920। In the course of your audit, you observed that the commission paid to the agents constituted the major expenses had to be expenses in the operating expenses of the company. Enumerate the audit concerns that address to the assertion required for the auditor to ensure continued existence of internal control as well as the fairness of the amount in accounting the commission paid to the agents। commission paid to the agents के लिए क्या क्या वेरीफाई करेंगे, where is this answer? कमीशन और ब्रोकरेज पेज टू द एजेंट, तो खाली उन्हीं एजेंट्स को पैसा मिल रहा है जो कंपनी के रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स में है। जो रेट पे प्रीमियम कमीशन मिल रहा है या ब्रोकरेज मिल रहा है दैट इज एज स्पेसिफाइड बाय आईआरडीए। जो भी ब्लैक लिस्टेड एजेंट्स है उनको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा सिर्फ और सिर्फ सॉलिसिटेशन बिजनेस के लिए मिल रहा है, सॉलिसिटेशन बिजनेस के लिए मिल रहा है, रेट प्रिस्क्राइब है, ब्लैक लिस्टेड को नहीं मिल रहा है, लिमिट्स के विद इन है। कंपनी शुड पे कमीशन और ब्रोकरेज ओनली टू द एजेंट्स एंड नॉट टू एनी वन एल्स। रजिस्टर ऑफ एजेंट्स वेरीफाई कर लो, कमीशन का आउटफ्लो आउटगो एक्चुअली रियम्बर्समेंट बैंक से ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है ये वेरीफाई करना है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, कमीशन पे टू द एजेंट्स, तो जीएसटी लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर इन लिमिट्स, रेट्स, सॉलिसिटेशन बिजनेस, नॉट ब्लैक लिस्टेड, डिसबर्समेंट वाउचर्स चेक करना। हाँ ये वाला पॉइंट भी अच्छा वाला पॉइंट है क्योंकि ये इनकम है फॉर एजेंट्स, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है। स्क्रूटिनाइज लेजर्स, एजेंट रजिस्टर, एजेंट लेजर्स एंड कमीशन आउटगो जो भी हुआ है वेदर दैट इज ड्यूली अकाउंटेड फॉर। नेक्स्ट, ऑडिटर्स कंसिडरेशन व्हाइल रिव्यूइंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अभी ये देखो, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस मतलब ऑडिट साल में तो एंड में दिया हुआ पॉइंट। और देखो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी सारा चीज़ें था जो हम लोगों को चेक करना था। पॉलिसी सरेंडर, इसके बाद था हमारा इन्वेस्टमेंट्स,
क्लेम्स, हियर यू गो। सो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले तो वो देखना है कि इन्वेस्टमेंट कौन से फंड से हुआ है, पॉलिसी होल्डर फंड या शेयर होल्डर्स फंड। इन्वेस्टमेंट जब भी कर रहे हैं दैट इज एज पर द नॉर्म्स, IRDA ने जो नॉर्म्स दे करके रखे कि कौन से कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग कैसे करना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंशिएशन, डिफरेंट डेस्क, देखो फ्रंट ऑफिस, बैक एंड ऑफिस, डीलिंग ऑफिस। तो जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करिए तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए देर आर पर्सन हु टेक अ कॉल कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, देर आर पर्सन हु एक्चुअली एग्जीक्यूट्स इट, देर आर पर्सन हु अकाउंट्स इट। सो ये सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज एन ऑडिटर व्हाट यू नीड टू चेक इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी चेक करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस वेरीफाई करना है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई कर लेनी है, मिनट्स, स्कोप एंड मिनट्स ऑफ द कमिटीज, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कमिटीज वेरीफाई करनी है, whether there is a compliances with all the regulations specified by IRDAI, disaster recovery, backup, continuity plans क्या है, investable surplus कितना है, कितना amount आप invest कर सकते हो, automatically monitor, ensure that the system is able to automatically monitor the regulatory limits, क्या ratings पे कहाँ कितना investments करना है। Also जब भी हम investments करें we need to verify the credit rating of the debt instruments। खाली रिस्क के बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, NAV का कंपटीशन, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, ये रिस्क को इवेल्युएट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर द रोल ऑफ एन ऑडिटर व्हेन ही इज वेरीफाइंग द इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। दिस इज एन RTP November 19 का क्वेश्चन। सेम NAV competition, market risk, investment policies, split between shareholders fund, policy holders fund। ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखा है गाइज। आई होप यू ऑल आर एबल टू रिकॉल इट। ठीक है, ईच एंड एवरी बातों पे, ईच एंड एवरी पॉइंटर्स पे बहुत ही डीप डिटेल चर्चा हो चुकी है। योर ऑडिट असिस्टेंट सीक्स योर हेल्प इन चेकिंग द क्लेम लायबिलिटी ऑफ भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड and wants to know what are the registers and the records he should obtain in order to review in this regards। which regards? claim। okay, तो क्लेम के लिए कौन से रजिस्टर्स बनाने होते हैं? 6 रजिस्टर्स हम लोगों ने बात की थी कि क्लेम्स के लिए कुछ 6 रजिस्टर्स है जो आपको बनाने हैं, कंपनी को मेंटेन करने हैं और ऑडिटर को चेक करने हैं। कौन सा है वो लोग? so following registers or the records are required to be prepared for claims। पहला इंटीमेशन रजिस्टर, क्लेम पेड रजिस्टर्स, डिसबर्समेंट रजिस्टर्स, डॉकेट रजिस्टर, सैलवेज रजिस्टर, क्वालिटी इंश्योरेंस टीम का रजिस्टर। ठीक है, तो ऐसे 6 रजिस्टर्स है जो आपको चेक करने हैं, यू नीड टू वेरीफाई इन दिस रिगार्ड्स। इंटीमेशन, पेड, डिसबर्समेंट, डॉकेट, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड सैलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Mr. Bhavya is appointed as an auditor of General Insurance Company Limited. State the verification procedure to be followed by Mr. Bhavya in case of outstanding premium and agent balances। मतलब अगर हमको पहले तो प्रीमियम नहीं मिला है और आउटस्टैंडिंग एजेंट बैलेंसेस को पैसा नहीं दिया तो एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग है और मतलब रिसीवेबल है और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ये हम लोगों ने, ये रहा क्लेम पेड। when we talk about जहाँ पे हमको लगता है कि देर आर इनकम्स एक्सपेंडिचर जो आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करेंगे कि भाई इतना बड़ा अमाउंट क्यों अनपेड है, क्यों अब तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। जहाँ पे हम लोगों को पेमेंट करना चाहिए था, लॉन्ग टर्म से ये चीज़ पेंडिंग है, तो व्हाट इज इट, व्हाई इज इट सो, रीजंस फॉर होल्डिंग द लॉन्ग like old balances। Scrutinize the control account, treatment of the old balances, sector wise, age wise, outstanding premium को categorize करो, verify whether the outstanding premium has been collected or not, check the availability of adequate bank guarantees, premium deposited। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो हो सकता है कोई बैंक गारंटी मिली हो, आपने कोई पॉलिसी ली हो मेरे पास और आपको ना आपने बैंक गारंटी मुझे दे करके रखा है कि मैम अगर मैं साल भर में 1.5 लाख रुपए नहीं दे पाई तो ये बैंक
मेरे लिए गारंटी ले रहा है कि 1.5 लाख भरेगा, तो चेक अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो बैंक गारंटी है क्या सामने? सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू वेरीफाई. दिस विल बी इन बैलेंस शीट आइटम्स. ये क्या आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, ये यहाँ पे है इसका. कंट्रोल अकाउंट चेक करो, इनऑपरेटिव बैलेंसेस चेक करो, ओल्ड बैलेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है, व्हाट आर द रीजंस फॉर रिटेनिंग दिस ओल्ड बैलेंसेस, एडिक्वेट बैंक गारंटी, एज वाइज, सेक्टर वाइज आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, ह्यूज आउटस्टैंडिंग एजेंट बैलेंसेस है तो रीजंस पूछो. ठीक है, कि ये क्यों एडजस्ट नहीं किया गया है, अगर आपको लगता है कि पैसा नहीं मिलने वाला है तो अब तक क्यों होल्ड करके रखा है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. While auditing secure insurance, you observe that major proportion of the expenses of the company is remuneration to the agents. How would you verify? Commission paid to agents. ये अभी पढ़ा. Commission paid to agents में rates, limits, outstanding, blacklisted, जहाँ पे solvency, only payment to the registered agents, TDS, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है. राइट इट सेम, ये सेम क्वेश्चन है. प्रीमियम पे, सॉरी नॉट प्रीमियम, कमीशन पेड टू एजेंट्स या ब्रोकरेज पेड टू एजेंट्स. यहाँ पे दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन. हाउ वुड यू वेरीफाई एजेंट बैलेंसेस? ये आउटस्टैंडिंग एजेंट बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करेंगे? आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड द एजेंट बैलेंसेस, स्टडी मैट का क्वेश्चन जो अभी पढ़ करके आए वो. हाउ वुड यू वेरीफाई इन्वेस्टमेंट्स for life insurance policy? This is also same and this is your homework too. Next, Girnar is appointed as the auditor of CA Girnar is appointed as the auditor of National Insurance Company Limited. State the verification procedure to be followed by Mr. Girnar in case of reinsurance outwards. अब ये reinsurance वाला केस आ गया भाई, ये है reinsurance. अब री इंश्योरेंस आउटवर्ड्स के केस में आपको क्या वेरीफाई करना है? तो ऑडिटर शुड वेरीफाई अंडरराइटिंग रिटर्न्स, पैटर्न इन द कैटेगरी ऑफ द रिस्क विच इज सीडेड, परसेंटेज ऑफ द सीजेशन ऑफ द प्रीमियम, कमीशन कितना पे हुआ है, रिसीव हुआ है. थोड़ा एनालिटिक्स कर लो कि कितना है री इंश्योरेंस जो आपने सीड करके रखा है, मतलब दे दिया है. इवेंट्स विच आर अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कन्फर्मेशन वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या है, कैश लॉस हुआ है क्या, फॉरेक्स रेगुलेशंस, प्रोविजंस एंड एग्रीमेंट्स, ये आपको वेरीफाई करना है इन केस ऑफ री इंश्योरेंस आउटवर्ड्स. अंडरराइटिंग, पैटर्न, सीजेशन, जो जितना आपने अमाउंट सीज किया है, आउटवर्ड रेमिटेंस कितना है टू द फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनी, कैश लॉसेस, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, मेजर क्लेम्स, परसेंटेज, बेसिकली परसेंटेज पैटर्न ऑफ नेट प्रीमियम, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना, एनी अकाउंट जहाँ पे आपको लगता है कि प्रोविजनिंग करना है, राइट ऑफ करना है अमाउंट, वो वेरीफाई करना. सो व्हाट इज दिस? तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? री इंश्योरेंस आउटवर्ड्स. नेक्स्ट, एन्यूमरेट द स्टेप्स टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर फॉर वेरीफाइंग री इंश्योरेंस आउटवर्ड. सेम पॉइंट for general insurance company. So while teaching you this chapter, मैंने आपको ये बोला था जो कंसेप्ट आपको डायरेक्टली याद नहीं आता ना कि जनरल के लिए क्या था, लाइफ के लिए क्या था, जो एक भी आंसर आपको याद है ना, आप प्रीमियम, एजेंट बैलेंसेस, री इंश्योरेंस, रोल ऑफ एन ऑडिटर विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा चीज़ ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा सा कॉमन है. अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ना कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या था और जनरल इंश्योरेंस के लिए क्या था, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ. जो याद आ रहा है, जिसका भी आंसर याद आ रहा है, यू राइट इट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. High Life Insurance is into the life insurance businesses and has established presence in the field since last 25 years. Your firm, SRN Company, are appointed auditors of High Life Insurance Company. While conducting its audit, you come across several important actuarial process being followed in accordance with the general regulatory requirements. You also understand and realize that actuarial development department
is calculating and modeling hub of the company. Obviously ना, for insurance company the actuarial department is a main hub, क्योंकि वही है जो पॉलिसी मॉडलिंग, सॉल्वेंसी, रिस्क अंडरराइट करना है कि नहीं करना है, क्या पॉलिसी फ्रेम करना है, इन सब के बारे में डिसाइड करता है. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट when you talk about actuarial department, what is the role of an auditor? So actuary is an expert, and when we being auditors are verifying some experts work, we need to understand their calculation, computation, what is the role of their actuary, उनका source of data क्या है ना, इनका कोई standardized technique है क्या, industry follow technique क्या है. So that is here you go. Role of actuary क्या होता है? Product development, model development, statutory valuation, reserving, solvency, business planning. So what is the role of auditor? To check the valuations, whether that is duly certified, assumption क्या लिया है, estimations क्या है, source of data क्या है, whether the certificates issued by the actuary, try whether I can rely on those certificates or not, discuss with actuary if required. So these are role of an actuary and how will we verify. So खाली रोल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिटर के रोल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. सो 2 ways क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू. दिस इज अ रोल ऑफ एक्चुअरी इन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट एंड हाउ विल यू वेरीफाई इट. हम लोगों को अजम्पशंस, उनका जो प्रोसेस है, सर्टिफिकेशंस, इन सबको चेक करें. नेक्स्ट, हाउ विल यू वेरीफाई. बोलता है एज एन ऑडिटर डिस्कस द स्टेप्स taken by an auditor in order to verify the premium collected by the life insurance company. The premium collected by life insurance company में वो 6 points वाला आंसर बताया था मैंने. Premium collected, advance, calculations of premium. Remember this? Other points. ये life. चलो देखो. Collection of premium, whether that is credited to a separate bank account, daily reconciliation has been made, appropriate mechanism is there to ensure that all the collections are deposited to the bank on the timely basis. Calculations of the premium, recognition, basically check that premium is appropriately recognized. There is an inbuilt mechanism to recognize the income of premium. There is appropriate system in place to have a reconciliation, to conduct reconciliation. Whether the advance premium is received, appropriate liability standing किया है कि नहीं, identification कैसे किया है, reporting of the figures, premium figures to IRDA and the management, and last F वाला point also other areas in order to check proper SOPs are developed by the companies or not. So that is premium collection for life insurance. Yeah, यही 6 points, right? F is others. Next, explain briefly that if the policy is lapsed and revived in case of life insurance, what is your role in order to verify it? देखो, पॉलिसी लैप्स कब होता है? बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम. तो हम लोगों को ये चेक करना है कि द लैप्स का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पॉलिसी. वी विल नॉट बुक एनी काइंड ऑफ क्लेम बिकॉज यू हैव नॉट पेड द प्रीमियम इन टाइम. तो जहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम है एंड फॉर दैट हम लोग डिसकंटिन्यूएंस कर रहे हैं पॉलिसी का, दैट इज नोन एज लैप्स. जहाँ पे भी हमको ऐसा लगता है कि द पॉलिसी इज लैप्स्ड, अप्रोप्रिएट मार्किंग टू दैट पॉलिसी इज बीइंग मेड कि दिस पॉलिसी इज लैप्स्ड और नॉट, ये वेरीफाई करना. ये भी चीज़ चेक करना कि जो पैसा उन लोगों ने बाद में ग्रेस डेज में हमको दिया है, से फॉर एग्जांपल आपने डेडलाइन मिस कर दी, वी मार्क द पॉलिसी एज लैप्स्ड, बट हम लोगों ने 3-4 दिन आपको ग्रेस दिया था. इन दैट पीरियड यू केम टू द कंपनी एंड यू सेड कि मैम आई एम सो सॉरी, आई मिस द ड्यू डेट, बट मुझे ये पॉलिसी रिन्यू करनी है, मुझे रिवाइव ही रखनी है, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट. सो चेक वेदर द रिक्वेस्ट फॉर रिवाइवल इज रिसीव्ड बाय द पॉलिसी होल्डर, द अप्रोप्रिएट लेट फीस, प्रीमियम पॉलिसी का पैसा इज रिसीव्ड और नॉट. एजेंट्स डू नॉट गेट रिन्यूअल. हाँ, अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है तो एजेंट्स को भी रिन्यूअल का कमीशन नहीं मिलेगा. What is the role of the auditor? The primary objective of the auditor is to check and confirm the due dates are appropriately recorded, monitored properly, policies are marked lapsed on non-receipt of the premium accounts on the due dates or the grace period. In case of revival request, check the outstanding amount are paid. जो भी पॉलिसी रिवाइवल का रिक्वेस्ट आया है, पॉलिसी होल्डर ने दिया है, ऑल्सो इवेलुएट द सिग्नेचर्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22.
You have been appointed to carry out the audit of Sky Insurance Limited. You observe that commission paid to the agents constituted the major expenses. Same point, commission to agents. Commission paid to the agents को कैसे verify करेंगे that this is done? Rates, limits, solicitation business, blacklisted, TDS, officers in charge, appropriate disbursement, ये सारा चीज. Commission payable. What is commission payable? That is outstanding commission to the agent. तो दो चीज था है ना, outstanding premium and outstanding commission payable. तो ये भी same point है, calculation proper है कि नहीं है. So new business, agency commission, क्यों outstanding premium है, बाकी है. Next is actuarial process को what is the role of an auditor in order to verify it. Actuarial process अभी हम लोगों ने पढ़ा. This is also same, mark it as same. Actual policies are already asked past examination question. Role of actuary and role of auditor while verifying the actuarial process. Assumptions verify करना, assumption के साथ साथ उनका certification करना, discussion करना, ये भी चेक करना कि इनका जो डेटा और सोर्स ऑफ डेटा है वो अप्रोप्रिएट है क्या. दैट इज द रोल ऑफ ऑडिटर इन वेरीफाइंग द रोल ऑफ एक्चुअरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे सॉल्वेंसी मार्जिन वाली बात कर रहे हैं. ये पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन. मेसर्स राजुल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ देयर क्लाइंट्स कंसेशन लिमिटेड, a general insurance company which has a paid up share capital of 18,600 lakhs. Okay. During the course of the audit, it was found that the company was not maintaining the required solvency margin. Oh my God. As per the provision of Insurance Act 1938. When the issue was escalated to the management, they replied that solvency margin needs to be maintained as per the limits only as on the last date. बोलते कम ऑन सॉल्वेंसी मार्जिन खाली 31 मार्च में हम लोगों को देखना होता है. थ्रू आउट द ईयर इट इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला. कॉमेंट ऑन द रिप्लाई ऑफ द मैनेजमेंट वेदर दैट इज टेनेबल और नॉट. हम लोग बोलेंगे एब्सोल्युटली रॉन्ग. 64VA टॉक्स अबाउट सॉल्वेंसी मार्जिन. सॉल्वेंसी मार्जिन हैज टू बी चेक्ड ईच एंड एवरी डे, ऑल द टाइम. हम लोग कहते हैं ऑल द टाइम द इंश्योरेंस कंपनी शुड हैव मोर ऑफ अ सेट एज कम्पेयर टू द लाइबिलिटीज. और वहाँ पे आपको 50% का क्राइटेरिया दे करके रखा है. मिनिमम कैपिटल विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 6, उसका 50% शुड बी मेंटेन्ड एज द सॉल्वेंसी मार्जिन बाय ईच एंड एवरी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी. सो यहाँ पे 64VB के हिसाब से, VA के हिसाब से, every insurance or reinsurance company needs to maintain an excess of the value of asset over liability. Please underline this all the time, which should not be less than 50% of the amount of minimum capital which is stated under section 6 of the act. Hence in the given case आप ये बोल रहे हो कि खाली 31st of March पे ये अमाउंट रखना है, that is absolutely not tenable. Next, Adeshwar Private Limited is engaged in the business of real estate. Again this is the same question जो मैंने आपको एकदम ही स्टार्ट में रीड आउट करवाया था कि रियल एस्टेट में इनका इन्वेस्टमेंट है. बोलो वैल्यूएशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कैसे करें. ठीक है. द ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड सम ऑफ द आउटकम ऑफ एस्टिमेशंस एंड द प्रायर पीरियड री एस्टिमेशंस. अब यहाँ पे देखो एस्टिमेशन बेसिकली हमको चाहिए क्या, रियल एस्टेट का वैल्यूएशन. तो इसके लिए हम लोगों ने मांगा कि पिछले टाइम कैसे आपने वैल्यू किया था, तो उसका डेटा दे दो. मैनेजमेंट ने क्या बोला, देखो मैनेजमेंट रेफ्यूज द इन्फॉर्मेशन स्टेटिंग कि सर आप सिर्फ करंट ऑडिट देखो ना, आपको प्रीवियस ऑडिट वगैरह देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी ऑडिटेड है. व्हाट इज योर लुकआउट इन दिस. हम लोग बोलेंगे कि कम ऑन, हमारे हिसाब से ये सारा सब कुछ इवैल्यूएट करना हमारी जिम्मेदारी है. एज पर ऐसे 540 टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स, इट इज अवर ड्यूटी. हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट एस्टिमेशन, प्रायर पीरियड एस्टिमेशंस, पर्टिनेंट टू री एस्टिमेशंस, एवरीथिंग आई कैन आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि नो 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 दिस इज नॉट योर लुकआउट, मेरे जजमेंट के लिए मुझे ये सारा डेटा की जरूरत है, मैनेजमेंट कैन नॉट रेफ्यूज इट. सो हियर द मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफ्यूजिंग द रेलिवेंट डेटा. Cool. This is the expected exam question.
इंश्योरेंस में से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ट्राइड कंपाइलिंग इन दिस ऑडिट के सवाल, ठीक है. So I hope you all are able to recall the question and answer based on the studies which we have done up in the class. So that is all for the question and answer session. So this is all about the practice session of audit of insurance company. I will see you all in the next forthcoming classes. You all keep studying, keep revising, be safe, take care.